Hello students, how are you all? Hope you all are good and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence term 3. So this is chapter number 4. So this is lecture 2 and this is summary lecture and the topic is Abu Ali. Topics to be covered in this lecture: we will do reading, explanation, word meanings and book exercises. So let's begin. So students, this is chapter number 4 and chapter name is Abu Ali, which is on page number 35. Okay, so we have already done this chapter beta. So today we will do summary of this chapter. So before starting the chapter, let's have a look on the word meanings again. Road, road, R-O-D-E, road. Road means सवार हो गए. Exclaimed, E-X-C-L-A-I-M-E-D, exclaimed means चिल्लाना. Dismay, D-I-S-M-A-Y, dismay means बेचैनी, घबराहट. Scratched, S-C-R-A-T-C-H-E-D, scratched means खुजलाना भी होता है बेटा, खरोचना, कुरेदना. Okay, and confused, C-O-N-F-U-S-E-D, confused means उलझन में, परेशान. Okay, so these are the new words, or you can say word meanings of this chapter. Now let's start with summary of this chapter. Okay beta. So this story is about a man whose name was Abu Ali. ये जो story है बेटा एक man की है जिसका name Abu Ali था. Okay, so he is Abu Ali. देखो, you can see in the picture also. आप इस picture में भी देख सकते हैं. He is Abu Ali. Okay, so Abu Ali. One day Abu Ali went to a fair and he bought 9 donkeys. एक दिन जो Abu Ali था बेटा वो fair means मेला. Fair means मेला. मेले में गया और 9 donkeys खरीदे. He rode on one of them and the rest of the donkeys followed him. वह उनमें से एक पर सवार हो गया और बाकी जो donkeys थे वो उसके पीछे पीछे चल दिए. Okay, when he turned around thinking to count his donkeys, जब वह अपने donkeys को गिनने के लिए सोचने लगा, so why he found only 8 donkeys? Can anyone tell? उसे केवल 8 donkeys ही क्यों मिले बेटा? Because he was not counting his own donkey on which he was sitting. That is why he found only 8 donkeys. Okay, क्योंकि वह अपना donkey नहीं गिन रहा था जिस पर वो बैठा था, इसलिए उसे केवल 8 donkeys ही मिले. Okay, so when he got down from his donkey on which he was sitting, he found all the 9 donkeys there. Okay, तो जब वह अपनी डोंकी से नीचे उतरा जिस पर वो बैठा था तो उसे वहाँ सभी 9 donkeys मिले. ओके बेटा. सो ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम. उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपकी क्लास में आपकी मैम आपको बोले कि बेटा काउंट द बेंचेस. आप अपने जो बेंचेस हैं उन्हें काउंट करो, पर आप बैठे बैठे ही गिन रहे हो, अपने काउंट कर रहे हो. ठीक है. सो आपके साथ भी क्या मिस्टेक होती है कि जैसे आप अपना बेंच काउंट करना भूल जाते हो और बाकी बेंच काउंट कर लेते हो, और उसमें क्या होता है एक बेंच की फिर काउंटिंग की गलती हो जाती है ना. और जब आप खड़े होके काउंट करते हो क्लास में, फ्रंट में आके बेंचेस को काउंट करते हो, तो आपकी जो काउंटिंग होती है वो अलग होती है. तो इसी तरीके से सेम प्रॉब्लम यहाँ पे मूसा के साथ हो रही थी बेटा, ये सॉरी अबू अली के साथ हो रही थी कि वो अपने जो डोंकी जिस पे वो बैठा था वो उसको काउंट नहीं कर रहा था, और जो बाकी उसके पीछे जो डोंकी था उन्हीं को काउंट कर रहा था. ओके, पर जब वो उतर कर अपने डोंकी से उतर कर काउंट कर रहा था तो वो 9 donkeys हो जा रहे थे, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो गया था बेटा, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है. ओके. So then he climbed his donkey and continued his journey. After riding a few miles, he decided to count his donkeys again. So फिर वह अपनी डोंकी पर चढ़ गया और अपनी जो जर्नी थी बेटा, अपनी जो यात्रा थी वो जारी रखी. कुछ मील की सवारी करने के बाद उसने अपने डोंकीज को फिर से गिनने का फैसला किया एंड उसने काउंट करना शुरू किया. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. He scratched his head and got down from his donkey to find out the 9th one. He searched everywhere, then he counted again. उसने अपना सिर खुजलाया क्योंकि वो इतना कंफ्यूज हो गया था बेटा. इसने अपना सिर खुजलाया और 9th डोंकी का पता लगाने के लिए अपनी डोंकी से नीचे उतर गया. उसने हर जगह देखा, खोजा, फिर उसने
फिर से उनकी काउंटिंग की. अगेन द डोंकी वर 9 इन नंबर्स. फिर से डोंकी जो थे बेटा वो 9 थे. ही वॉज सो फुलिश दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड हिज ही डिडंट अंडरस्टैंड. वह इतना मूर्ख था कि उसे समझ नहीं आया. हिज फ्रेंड मूसा वॉज पासिंग बाय फ्रॉम देयर. उसका जो दोस्त था मूसा वहाँ से गुजर रहा था. उसका दोस्त मूसा वहाँ से गुजर रहा था. ओके. So he told him the situation. Musa was clever enough to understand. उसने उसे सारी जो सिचुएशन स्थिति थी वो बताई. मूसा काफ़ी समझदार था. Now who will tell what was happening to Abu Ali? What mistake was he doing बेटा? अब कौन बताएगा कि अबू अली को क्या हो रहा था, वह क्या गलती कर रहा था? Yes, he was not counting his own donkey on which he was sitting. हाँ, वह अपना जो डोंकी था वो नहीं गिन रहा था जिस पर वो बैठा था. मूसा ऑल्सो आंसर्ड हिम सेम एंड सेड ही इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ डोंकी. और मूसा ने भी बेटा सेम आंसर दिया और कहा कि वह भी डोंकी की तरह बिहेव मीन्स व्यवहार कर रहा है. और जो मूसा था बेटा, एंड मूसा वॉकड अवे लाफिंग, और मूसा हंसते हुए चला गया. Okay, so this is the summary of this chapter. I hope you have understood this story well. So now we will do question answer. So just take out your English notebook. So in notebook we will write format first. So write down date here. DATE, date. So in center write down chapter number 4, and this side write down day. Okay, chapter name is Abu Ali. Okay, so topic is question answers, so you can write in short form. So our first question is, so this is page number 36, part B. Answer the following questions. Question 1, which part of the story did you like the best? Why? आपको बेटा स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्यों? सो आंसर इज, सो आंसर 1 इज, राइट डाउन आंसर 1. When Musa, write down, when Musa said that he could see 10 donkeys including Abu Ali, that was the most humorous part. Okay, so when Musa said that he could see 10 donkeys including Abu Ali, that was the most humorous part. Means बेटा जब अबू अली मीन जब मूसा ने कहा कि वह अबू अली सहित 10 डोंकीज देख सकता है, जो कि सबसे ह्यूमरस मीन्स सबसे मज़ेदार पार्ट, मीन्स सबसे ह्यूमरस पार्ट मीन्स सबसे मज़ेदार पार्ट था. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2, गिव अ टाइटल टू दिस स्टोरी. सो अब आपको बेटा स्टोरी को टाइटल देना है. सो यू नो ऑलरेडी नो दैट टाइटल इज गिवन, बट आप टाइटल अपने साइड से कैसे चूज करोगे? ओके, टाइटल शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी और कैरेक्टर. ओके बेटा, आप जो टाइटल चूज करोगे वो आपका स्टोरी से रिलेटेड या फिर कैरेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए. ओके, सो वी विल राइट टाइटल, राइट डाउन. सो राइट डाउन आंसर 2. बिकॉज एज वी ऑल नो दैट द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन डोंकीज. तो जो स्टोरी है बेटा वो डोंकीज के ऊपर बेस है. और जैसे कि मूसा ने कहा है कि मूसा सेड दैट ही कुड सी 10 डोंकीज इंक्लूडिंग अबू अली. ठीक है, सो उसने जो 10th वाला जो डोंकी था वो अबू अली को बताया था, क्योंकि वो डोंकीज की तरह ही बिहेव कर रहा था. सो हम टाइटल लिख सकते हैं द 10th डोंकी.
Okay, write down 10th donkey. Okay, now let's see question number 3. Question 3. What mistake was Abu Ali making while counting the donkeys every time? So अबू अली बेटा कौन सी मिस्टेक कर रहा था बार बार अपने डोंकीज को काउंट करने में? सो आंसर इज, राइट डाउन आंसर 3. Abu Ali was not able to count the donkey on which he was sitting. He was sitting and thought that one of his donkey was lost. Okay, so Abu Ali was not able to count the donkey on which he was sitting and thought that one of his donkey was lost. अबू अली उस डोंकी को गिन नहीं पा रहा था जिस पर वो बैठा था और उसने सोचा कि उसका एक जो डोंकी है वो खो गया है. ओके, सो these are the question answers beta. You have to write it down in your notebook. Okay, now let's move to your book again. So just open page number 37. So this is page number 37. Thinking caps on. Spell a 5-letter words using the clues below. ओके, सो आपको यहाँ पे बेटा क्लूज दिए हुए हैं, इनको रीड आउट करके यहाँ पे जो आपका 5-letter वर्ड्स है उसको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इज द लास्ट लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड. सो जो लास्ट लेटर है आपका मिस्ट्री वर्ड का इज द सेम लेटर दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच डे ऑफ द वीक. सो जो आपके वीक जो डेज हैं बेटा, उसमें जो वीक डेज हैं आपके, उसमें लास्ट लेटर कौन सा होता है बेटा हमारा? लाइक मंडे है MONDAY, वाई इज़ द लास्ट लेटर. ट्यूसडे में भी वाई हमारा लास्ट लेटर होगा. तो जो भी जितने हमारे वीक डेज हैं उनमें लास्ट लेटर हमारा क्या है बेटा? वाई. सो वी विल राइट वाई. ओके, नाउ सेकेंड इज द सेकेंड लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड इज द सेकेंड वोवल इन द वर्ड पियर. यहाँ पे देखो सेकेंड वोवल की बात हो रही है, तो सेकेंड वोवल हमारा क्या है? A. So this is second letter of the mystery word. हमारा सेकेंड लेटर मिस्ट्री वर्ड का A आ जाएगा बेटा. ओके, नाउ थर्ड इज द थर्ड लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड. अब थर्ड लेटर की बात हो रही है. द थर्ड लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड इज द साइलेंट लेटर इन ए 4-letter वर्ड दैट मीन्स टू चैट और स्पीक. इट मीन्स टॉक की बात हो रही है बेटा. वो कह रहे हैं टॉक में हमारा क्या लेटर साइलेंट होता है? L. सो हमारा थर्ड जो मिस्ट्री लेटर है वो हो जाएगा L. ओके, सो फोर्थ इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड इज द लास्ट लेटर इन बोथ वर्ड्स दैट साउंड लाइक सेंट. ओके, जो फर्स्ट लेटर आपका मिस्ट्री वर्ड का बेटा वो कह रहा है साउंड लाइक सेंट. लाइक हमारा टेंट हो गया, ओके, वेंट हो गया. सो सब में लास्ट में देखो जो साउंड लाइक जिसमें जैसे राइमिंग जो होते हैं बेटा सेम सी साउंड आती है. सेंट, टेंट, वेंट, सब में लास्ट लेटर क्या आ रहा है हमारा? टी. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट लेटर है मिस्ट्री लेटर वर्ड का वो है टी. नाउ फिफ्थ इज द फोर्थ लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड. फोर्थ लेटर की बात हो रही है, तो फोर्थ लेटर ऑफ द मिस्ट्री वर्ड मैचेस द थर्ड लेटर. वो मैच करता है थर्ड लेटर से. सो थर्ड लेटर आपका क्या है? L. सो हमारा फोर्थ लेटर भी सेम हो जाएगा L. सो हमारा 5-letter वर्ड क्या हो गया बेटा? टेली. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंकिंग कैप्स ऑन. सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 38. सो दिस इज पेज नंबर 38. वी विल डू राइट ए वाइल. Look at the picture and write a small poem on it with the help of a word clues. So बेटा आपको स्मॉल
पोएम को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स. ओके, सो माई लिटिल बर्डी गिव ए ट्राई. ओके, हम ये ट्राई वर्ड यहाँ पे लिखेंगे बेटा. राइट, ट्राई. ओके, गिव अ ट्राई, flap your wings and fly up high. So write down high. Mama, just chill. I'm okay on the tree if I fly high. Write down fly high. The sun will burn me. So write down the sun will burn me. Okay, my little birdie give a try. मेरी छोटी चिड़िया एक कोशिश करे. Flap your wings and fly up high. तुम अपने पंख फड़फड़ाओ और ऊंची उड़ान भरो. ममा जस्ट चिल. वो अपनी जो छोटी चिड़िया बेटा वो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा जस्ट चिल. ठीक है, आई एम ओके ऑन द ट्री. मैं पेड़ पर हूँ और मैं पेड़ पर मीन्स वो कह रही है आई एम ओके ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर ठीक हूँ. इफ़ आई फ्लाई हाई, अगर मैं ऊंची उड़ान भरती हूँ, द सन विल बर्न मी, तो सूरज मुझे जला देगा. ओके, सो दिस इज द स्मॉल पोएम and you have to complete this poem with the help of clue box. Okay, so in this way you can complete this poem. Okay beta. So now let's move to page number 39. So this is page number 39. Celebrate life. Analyzing situations. Here are some difficult situations. Circle the possible solution. So यहाँ पे situation दी हुई है बेटा, आपको solution जो आपको लगता है possible solution है ये situation के लिए, आपको उनको circle करना है बेटा. Okay, so a man needs to get to a building that is at the top of a mountain. So बेटा एक मैन को उस जो बिल्डिंग है जो सबसे ऊपर है माउंटेन के, वहाँ पे जाना है. देयर वॉज नो रोड दैट लीड्स टू द टॉप, और वहाँ पे कोई रोड नहीं जाता. ठीक है, देयर इज़ अ लैंडिंग पैड. वहाँ पे एक लैंडिंग पैड है ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, नेक्स्ट टू द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साइड में. विच व्हीकल शुड द मैन यूज टू गेट देयर. ओके, वहाँ जाने के लिए मैन को किस व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए बेटा? लैंडिंग पैड है बेटा. लैंडिंग पैड हम किसके लिए यूज करते हैं? हेलीकॉप्टर के लिए. ओके, सो वी विल सर्कल दिस. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज a little girl asked her parents if she can get a new pet. So एक छोटी लड़की ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या उसे एक नया पेट मिल सकता है. Her mom and dad agreed, और उसके जो मॉम और डैड है वो एग्री हो जाते हैं बेटा, that she can have a new pet as long as it is not too big. ओके, जो उसके पेरेंट्स है वो एग्री हो जाते हैं उसकी बात के लिए, उसको पेट रखने के लिए कह देते हैं कि ठीक है हम एग्री हैं, उसके पास एक नया पेट जानवर हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट टू बिग, क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं है. एंड कैन फिट इन अ स्मॉल टैंक इन हर रूम, और वो कमरे में एक छोटे से टैंक में फिट हो सकता है. सो विच एनिमल विल मेक द बेस्ट पेट फॉर द लिटिल गर्ल. सो कौन सा जानवर है जो छोटी लड़की के लिए सबसे अच्छा पेट बनेगा. ओके, सो इन तीनों में से बेटा कौन सा पेट हो सकता है जो टैंक में भी फिट आ जाए उसके रूम में? हॉर्स भी नहीं आ सकता बेटा, राइट, पिग भी नहीं आ सकता, तो टैंक में टर्टल आ सकता है. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, सो नाउ लेट्स सी द previous homework solution beta. So this is page number 37. I had given you this two exercises. One is dictionary focus and another is language smarts. So in dictionary focus, find a word in the story which means the same as each of the following. So बेटा जिसका मीनिंग सेम था स्टोरी में, आपको इन वर्ड्स का मीन्स फाइंड करके लिखना था बेटा. इन वर्ड्स के जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स थे जो स्टोरी में थे आपके.
सो फर्स्ट आपको मैम ने ऑलरेडी करवा दिया था डिसअपॉइंटमेंट का डिसमे. नाउ सेकंड इज अमेज्ड. अमेज्ड मीन्स स्टोरी word is surprised. So write down surprised. Okay, because amazed and surprised meaning is आश्चर्यचकित रहना या हक्का बक्का या दंग रहना. Okay. Third is puzzle. For puzzle word is riddle, because puzzle and riddle means same beta, paheli. Okay. Fourth is mixed up. Mixed up means word is confused. Okay, means उलझन में या परेशान. Now fifth is foolish. For foolish the word is stupid, because stupid, sorry spelling is stupid. Okay, so stupid and foolish means same, मूर्ख और बेवकूफ. Okay, सो लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी टू नो दैम बेटर. आप इनको बेटा अच्छे से इनके मीनिंग जानने के लिए आप डिक्शनरी में इनको डिक्शनरी में भी आप इनको देख सकते हो. ओके, सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 38. सो दिस इज पेज नंबर 38. दिस एक्सरसाइज also I had given you for your homework beta. Language smart. Change the root words by adding prefixes before them. Try making more new words by adding suffixes after the root words. Okay, so these are the root words. You have to complete these words by adding prefix and suffix. So one I had already done for you. Now second is lead. Okay, so for lead we can add in prefix miss, M-I-S, miss, and for suffix we can write ing. So it will become misleading. Okay, misleading. Now next is agree. For agree we can add dis, D-I-S, dis, and in suffix we can write able, A-B-L-E, able. So the word is disagreeable. Okay, next is joy. For joy we can add in prefix n, E-N-N, and for suffix we can write able. So word is enjoyable. Okay, now last is view. For view we can write re in prefix, and in suffix we can write ing. So word is reviewing, R-E-V-I-E-W-I-N-G, reviewing. Okay, uncomfortable, misleading, disagreeable, enjoyable, reviewing. Okay, so in this way you have to complete these two exercises beta. Okay, please do needful correction. So in homework, so let's see your homework for today. In homework, revision assignment of chapter 4 Abu Ali will be uploaded on EdQuark and WhatsApp group. ओके बेटा, सो दिस इज़ योर होमवर्क में आपको रिवीजन असाइनमेंट अपलोड करेंगी मैम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और एडक्वार्क साइट पे. ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.